Okay, good day to all my dear student. This is video lecture 5. It is basically focused on a function. As all of you know, it is a very important topic for CBSE board examination, and its question are very important for CBSE board, and so many times its question repeat, and so many times its question out in paper. Also, my students, be careful. If all of you face problem in my video lecture, please, my students, my dear students, pause the video, make sure where are you face the problem. First, all of you make sure and then proceed. Your it's your faith, it's your trust. Okay, if all of you trust on me, then everything is possible, otherwise nothing. Now let's we start our video lecture 5. Now be careful about this lecture, my dear all student. Here is question I am writing here. So that the modulus function R to R, domain R to codomain R, given by fx mod of x is neither 1 nor onto, where mod of x is x if x is a non-negative is greater than equal to 0, and mod of x is minus x if x is negative. Okay, my dear student, first all of you know to how to you write your answer sheet, because it is very important point for the subjective examination. This is a CBSE board, not theoretical exam, not optional exam. This is subjective exam. So my dear student, there is a solution. We first write solution and then we write given, and given. In given we search in question what we write, from which we have to get the solution of the question. We write now what? Domain R to codomain R, domain R to codomain R, and also we write now just below it function fx is equal to x. Okay, my dear student, now here is given function mod x, means modulus function, and all of you know that if all of you put negative value in mod, it gives positive value. This means what? Mod is itself negative function. Mod is itself नेगेटिव फंक्शन. मॉड क्या होता है बेटा? नेगेटिव फंक्शन होता है, अपने आप में नेगेटिव फंक्शन होता है. ओके माय डियर फ्रेंड, so we make here a Venn diagram. From the Venn diagram I am easily describing its way and its solution and its visualization. प्यारे बच्चों, पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ऐसा है कि हमें सारी चीज़ें दिखें. जब दिखेंगी तो आप भूलेंगे नहीं, और उस टाइम पे ही आप उससे रिलेटेड चीज़ों को बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे. अन्यथा आप अगर रटेंगे, आप सिर्फ याद करने की लर्निंग बेसिस पे कोशिश करेंगे तो मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होगा. मैथमेटिक्स में आप जितना चीज़ों को स्टेप टू स्टेप ओपन करते जाएंगे, लेयर खुलता जाएगा और आपको मैथ में इंजॉय फीलिंग होगी. जो बर्डन फील होता है ना, वो नहीं पढ़ने के वजह से या रटने के वजह से होता है प्यारे बच्चों. तो यहाँ पे देखिए, हम पहला हमारा क्या है? 1 पहला हमें क्या दिखाना है? 1 तो 1 के लिए बेटा वही जस्ट अभी मैंने बोला कि नेगेटिव फंक्शन को रखेंगे तो नेगेटिव फंक्शन क्या दे रहा है? पॉजिटिव वैल्यू, यानी -1 दे रहा है, 1 भी 1 दे रहा है. हम लोग जानते हैं कि 1 में अगर कोई टू डोमेन, एनी टू डोमेन गिव्स सिंगल कोडोमेन. ओके, एनी टू डोमेन, ये डोमेन में है यानी इस पार्ट में है, ये डोमेन है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है ना. तो कोई भी, ये डोमेन है, कोई भी टू डोमेन, ओके, टू डोमेन गिव्स सिंगल कोडोमेन,
this means this is not injective, this is not 1-1, this is not 1-1, because इंजेक्टिव का मतलब होता है, बोलते हैं ना ही इज़ 1-to-1, 1-to-1 का मतलब सेल्फिश टाइप का, जो अपने से सिर्फ मतलब रखे। तो 1-1 जो है फंक्शन, ये सेल्फिश मतलब अगर इसको हम लोग थ्योरेटिकल वे में जानेंगे तो ये जो सेल्फिश लोग हैं उनके लिए हम लोग कह सकते हैं कि सेल्फिश लोग 1-1 टाइप के फंक्शन होते हैं। ओके, ये इनमें ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारे लोग एक जगह पे मैप कर सके। मैप यानी फंक्शन, ओके, मैप यानी फंक्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट, ऐसे 2 पे गया, -2 भी 2 पे गया, तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि -1 1 पे गया, 1 1 पे गया। ओके, सी क्लियरली, -1 भी 1 पे गया माय डियर स्टूडेंट, 1 भी 1 पे गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि two domains going to on a single codomain, two domains going on to single codomain, two domain going on to single codomain, this means it is not 1-1, तो ये 1-to-1 नहीं रहा। अब ये क्या हुआ, जब दो लोग एक ही जगह पे जाएंगे तो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन। ओके, जैसे शादियों में होता है कि एक फंक्शन होता है ऑर्गेनाइज, और वहाँ पे सारे लोग जाके क्या करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, है ना, सारी चीज़ें। तो इसका मतलब ये मेनी वन हो गया बेटा, दिस इज़ नॉट इंजेक्टिव। 1-1 मीन्स दिस इज़ नॉट इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव नहीं है बेटा। ओके, दिस इज़ नॉट इंजेक्टिव, दिस इज़ व्हाट मेनी वन टाइप फंक्शन। एंड ऑल्सो ऑल द नेगेटिव पार्ट्स इन कोडोमेन, this is codomain beta, my all dear students, this is codomain and this is domain. First of all, you make sure all the little points, and after that all of you sure about its solution and concept. This is domain, this is codomain, all the elements are called codomain, and those images are map are called image. Okay, those images are map are called image. Okay, तो इमेज यहाँ इसका क्या होगा, पूरा पॉजिटिव इसका इमेज हो जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव ही इसका पूरा इमेज, यानी नेगेटिव वाला सारा छूट जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी x के लिए कोई एक y भी अगर छूट गया, किसी भी x की वैल्यू के लिए कोई एक y वैल्यू छूट गया, तो हम जानते हैं कि तब वो आंटो फंक्शन नहीं होता है, तब वो क्या हो जाता है, इनटू फंक्शन हो जाता है। क्योंकि आंटो का क्या मतलब होता है, बोले हम बताए थे ना, छा जाना। मतलब जैसे लोग कहते हैं ना पार्टी में, गुरु आप तो छा गए पार्टी में, ऐसा कपड़ा ड्रेस सूट ऐसा पहने कि आप छा गए। तो छा जाने का मतलब ये होता है आंटो, और नहीं छा रहा है कोई एक आदमी भी, अगर बाय द वे 1000 लोगों का फंक्शन है वो, और उसमें से एक आदमी भी बोल दिया कि नहीं गुरु आप जो है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, या अच्छा नहीं आप ड्रेसिंग किए हो, तो उस टाइम पे वो क्या हो गया, तब वो आंटो नहीं होगा। क्योंकि मैथ में 100% एक्यूरेसी चलती है। एक बंदा बोल दिया, कोई सिंगल एलिमेंट अगर बोल दिया तो चीज़ें क्या होंगी, चीज़ें तुरंत वहाँ से वो डिफिनीशन फिल करके कोई और डिफिनीशन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, दिस इज़ इनटू फंक्शन, दिस इज़ इसमें से कोई एक एलिमेंट डिलीट कर दीजिए, ओमिट कर दीजिए, कोई एक एलिमेंट इसमें से क्या करिए, ओमिट कर दीजिए। जैसे ही आप डिलीट करेंगे वैसे ही क्या होगा, वैसे ही ये ऑन्टो से इनटू बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब मॉड जो मॉडुलस फंक्शन है ये क्या है प्यारे बच्चों, मॉडुलस फंक्शन जो है ना प्यारे बच्चों, ये मेनी वन टाइप का है और इनटू टाइप का है। इसका मतलब इट इज़ नॉट इंजेक्टिव वही इंजेक्शन की तरह ट्रीट करिए। जिस आदमी का इंजेक्शन है उसी को इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्टिव किसी और को नहीं लगेगा। ओके, तो इंजेक्शन नहीं है, ऐसे सर्जेक्शन भी नहीं है।
कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सबके लिए कॉमन होती हैं, तो वो ऑन्टो होता है। तो ऐसा नहीं है, तो सर्जेक्शन भी नहीं है, इंजेक्शन भी नहीं है, माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। ओके, अंडरस्टैंड? आई होप ऑल ऑफ यू क्लियरली अंडरस्टैंड. If all of you understand, I am get the success in my work, and it is most better for me than you. So all of you listening me, that time of interval, this is pleasure for me, and I request all of you, if all of you you get the problem, and comment me on video where, in which point, and what I am absolutely I am omit from myself that point. Okay my dear student, this is my request. हाथ जोड़ करके आप सभी लोगों से है ना, आप लोग पढ़िए, जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि सही वक्त पे सही चीज़ें सबको नहीं मिलती हैं, और जिसको मिलती हैं वही जो है कि एक अपनी दुनिया बनाता है। सही वक्त पे सही चीज़ें सभी को नहीं मिलती हैं प्यारे बच्चों। ओके बाय, सी यू अगेन। दिस इज़ माय वीडियो लेक्चर 5, एंड प्लीज़ like and subscribe this. I am Anil Kasi sir. Okay, thank you so much.